آج ہم خدا کے کلام پر عنوان ایک مسیحی کی زندگی کے تحت مطالعہ کریں گے۔ ہمیں کیسے ایک مسیحی کے طور پر درست ایمان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں اور معاشرے کے لیے اچھے نمونے کی زندگی گزارنی چاہیے۔ جو کوئی سیون کے اراکین کے کام دیکھے وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ وہ خدا کی کلیسیا میں جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم خدا کی کلیسیا کا اظہار نہ بھی کریں پھر بھی وہ ہمیں فوراً پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح اتنا ہی زیادہ ہمیں اس معاشرے میں دنیا کے نمک اور نور کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے آج آئیں معلوم کرتے ہیں کہ کتاب مقدس، انبیاء اور خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ بطور مسیحی کس قسم کی زندگی گزاریں۔ اس معاملے کے متعلق کتاب مقدس کی تعلیمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے آئیں ہم یسایہ باب 46 پر ایک نظر ڈالیں۔ آیت 10 میں لکھا ہے کہ جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ یہاں کہا گیا ہے کہ خدا ابتدا سے انجام کی خبر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ باتیں بھی جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں وہ ایام قدیم سے ہی بتا چکے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا مستقبل کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ آئیں ہم اس معاملے کے متعلق ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 آیت 18۔ میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں۔ یہاں کتاب سے مراد کتاب مقدس ہے جسے اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ ہمارے یسایہ باب 46 اور مکاشفہ باب 22 پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ خدا جو ابتدا سے انجام کی خبر دیتے ہیں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کتاب مقدس میں نہ کچھ بڑھائیں یا نہ کچھ نکالیں۔ شاید اب ہم مکمل طور پر نہیں سمجھتے کہ کیوں خدا نے ایسا کہا تھا، تاہم جیسے ہم صاف صاف ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مستقبل قریب میں وہ دن آئے گا جب ہم یہ سمجھیں گے کہ کیوں خدا نے ہمیں کتاب مقدس کی پیروی کرنے کا حکم دیا تھا۔ کتاب مقدس صاف طور پر بیان کرتی ہے کہ ایک مسیحی کو کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگرچہ بہت سے لوگ سبت اور فسح کو بیش قیمت مانتے ہیں، لیکن ایک مسیحی کی زندگی کے بارے میں تعلیم کے حوالے سے وہ شک کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی خدا کا حکم ہے۔ وہ محض اسے کتاب مقدس میں ایک نیک چلن یا اخلاقی سبق سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کتاب مقدس ہمیں کیسے سکھاتی ہے کہ خدا کے سب کلمات کو کیسے مانیں۔ ہمیں کتاب مقدس میں نہ کچھ بڑھانا یا نکالنا چاہیے۔ خدا ہمیں سکھاتے ہیں کہ حلیم اور مہربان بنو تاکہ آسمانی شہریوں میں تبدیل ہو کر راست بازی سے ملبس ہو سکیں۔ جب ہم نفیس اور مہربان زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کے کچھ لوگ ہمیں احمق کہتے ہیں۔ کیا اس کے باوجود ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے؟ جب کبھی خدا کے کلام کی بات ہو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہر چیز جسے خدا نے کتاب مقدس میں درج کروایا ہے ہماری نجات کے لیے اہم نہیں ہے؟ کتاب مقدس کی ہر بات ہمارے آسمان پر جانے کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو خدا کی مرضی کی فرمانبرداری کرنے سے قاصر ہیں؟ کیا اسی لیے خدا نے نہیں کہا کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیے؟ اگر آپ از سرے نو پیدا ہونے کی پہلی کوشش میں ناکام رہے ہیں تو دوبارہ کوشش کریں۔ اگر آپ کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی ہے تو ہمیں تیسری بار کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر جب تھامسن ایڈیسن نے بجلی کا بلب ایجاد کرنے کی کوشش کی جسے ہم روز استعمال کرتے ہیں، اسے کئی ناکامیوں کا سامنا ہوا۔ اس نے ناکامی کے بعد خدا سے یہ کہتے ہوئے دعا مانگی، میں ساری دنیا کو روشنی دینا چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے آگاہ کریں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اور مجھے بجلی کا بلب بنانے کا بہتر طریقہ بتائیں۔ اس نے مسلسل بغیر آرام کیے خدا سے مدد مانگتے ہوئے فریاد کی۔ آخر کار اس نے جدید معاشرے کی بہت اہم ضروریات میں سے ایک ایجاد کر لی اور اس تاریک دنیا کو منور کیا۔ آپ سب خدا جو ابتدا سے انجام کی خبر رکھتے ہیں نے کتاب مقدس میں تمام کلام درج کیا تھا۔
साथ ही उन्होंने हमें हुक्म दिया कि इसमें ना कुछ बढ़ाएं या ना कुछ निकालें। लिहाजा हमें किताब मुक़द्दस में लिखे तमाम कलमात को एहतियात से पढ़ना चाहिए। हमें खुदा की हदायत और अहकाम को इखलाकी या नेक चाल चलन के दुनियावी मयार से नहीं लेना चाहिए। इसकी बजाय हमारे फैसले के मयार की बुनियाद खुदा के कलाम पर होनी चाहिए। शायद कुछ कहें, खुदा ने हमें ये तालीमात बख्शी हैं कि सिर्फ इसके लिए हम दूसरों के साथ बगैर लड़े झगड़े रह सकें। अगर हम ये नहीं करते तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम इस ख्याल का मुवाजना मुकाशवा 22 बाब 18 से 19 आयत से करें तो उनके कहने का मतलब इसके सिवा कुछ नहीं है कि खुदा के कलाम में कुछ बढ़ाना या निकालना ठीक है। क्या ऐसा नहीं? किताब मुक़द्दस क्या कहती है? जितना ज्यादा किताब मुक़द्दस में बढ़ाया जाएगा, खुदा उतनी ज्यादा मिकदार में आफते बढ़ाएंगे, और अगर निकाला जाए तो आसमान में दाखिल होने का हक ले लिया जाएगा। आप सब, हमारे पेशतर इन आयात को पढ़ने की वजह यह थी कि हम खुदा के कलाम के लिए इस किस्म का रवैया इख्तियार करें। दुनिया में कुछ ऐसे माजरे हैं जहां खुदा के ईमानदार लोग तनकीद का शिकार होते हैं। वो खुदा पर ईमान रखने का दावा करता है, लेकिन अब तक उसकी शख्सियत में बेअदबी है। वो बहुत खुदगर्ज है। वो सिर्फ अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करती है। बेशक ये हमारे सयून के अराकीन की मिसालें नहीं हैं। हम ऐसे कई माजरे देख सकते हैं जहां लोग उनके बारे में मनफी बातें कहते हैं जो खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं। खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हुए वो कैसे यूं पेश आ सकते हैं? खुदा पर ईमान रखने का दावा करने वाला ओहदादार क्यों इतना कमतर है? उन्हें दूसरों के बारे में ऐसी बातें करते सुनकर मैं बेचैन हो जाता हूँ। ये हरगिज हमारे सयून के अराकीन के दरमियान नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुनियावी दस्तूर रह गया है तो हमें उन्हें आसमानी दसातीर में बदलना चाहिए। आए मत्ती बाब 5 पर चलें। बाब 5 आयत 13। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे किस किस्म के काम, नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। क्या हमें इन कलमात में कुछ बढ़ाना या निकालना चाहिए या नहीं? शायद कुछ सोचें, उस आयत के मुताबिक मैं काफी कर रहा हूं। हमें हरगिज ऐसे नहीं सोचना चाहिए। इसकी बजाय खुदा की पुरफजल तालीमात की फरमाबरदारी जूं की तू करने चाहिए। इत्तफाकन अगर अब तक हम में कोई बेफजल अमाल या काम है जिन पर हमारे इर्द गिर्द के लोगों के जरिए तनकीद की जा सके, तो हमें फौरन आज ही से अपने सब बुरे कामों, बदकार ख्यालों और खुद गर्जी से छुटकारा हासिल करना चाहिए, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदा के इस कलाम को जहन में रखते हुए कदम ब कदम आए हम सब खुदा के लोगों के तौर पर बालिग ईमान के साथ अज सिरे नो पैदा हों। आए हम तीतुस बाब 2 पर चलें। अगर हम मसीही हैं तो हमें किस किस्म की जिंदगी गुजारनी चाहिए? अगर कोई कहता है खुदा पर ईमान रखने वाला बनने के बावजूद उसका रवैया तब्दील नहीं हुआ है, तब हमारे रवैये ने खुदा की बेहरमती की है। आए हम बाब 2 आयत 7 देखें। सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहते कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाए। नौकरों को नसीहत कर कि अपने मालिकों के ताबे रहें और सब बातों में उन्हें खुश रखें और उनके हुक्म से कुछ इनकार ना करें। इनकार करने से मुराद हुक्म ना मानना है। हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इनकार करने के बजाय हिकमत से बात कर सकते हैं।
방안을 찾아야 되겠습니다. यहाँ ये कहती है गुलामों, लेकिन अब ये जमाना ऐसा जमाना है जब गुलाम नहीं होते। ताहम 이제 직장인 क्या हम अपने काम की जगहों और मुआशरे में दर्जाबंदी तंजीमी वजह से घिरे हुए नहीं हैं? 그런 어떤 입장에서 जब तक कि कोई आपसे बढ़तर रुतबे वाला आपको कुछ बुरा या खुदा की मर्जी के खिलाफ करने को नहीं कहता, 내용만 아니라면 बराए मेहरबानी खुशी से फरमाबरदारी करें और इनकार ना करें। 기뻐하고 거스려 말하지 말고 आयत 10 ये कहती है चोरी चालाकी ना करें। 이건 역시도 ये भी हम मसीहियों के लिए किताब मुकद्दस में तालीम है। 그리스도인들에게 알려주신 내용이니까 चोरी चालाकी ना करें, बल्कि हर तरह की दयानतदारी अच्छी तरह जाहिर करें, ताकि उनसे हर बात में हमारे मुनज्जी खुदा की तालीम को क्या हो, रौनक हो। 빛나게 하려 함이라고 했습니다. अगर हम ये करें, लोग सोचेंगे 사람들이 यकीनन जो कोई इस किस्म की जिंदगी गुजारता है खुदा का सच्चा ईमानदार कहला सकता है। ये मोतबर और भरोसे के काबिल हैं। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि अच्छे नमूने कायम करने में पहल करें। 11절 आयत 11 क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। 살라고 했습니다. यकीनन कोई वजह है जो खुदा हमें इस दुनिया में रहते हुए इस किस्म की जिंदगी गुजारने को कहते हैं। 혹시 하나님께서 खुदा हमें हरगिज कुछ भी बगैर वजह के करने को नहीं कहते। 관계없는 खुदा हमें कुछ ऐसा करने को नहीं कहेंगे जिसका हमारी निजात से कोई ताल्लुक नहीं। 이 성경 इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए 더해서도 안 कि किताब मुकद्दस की 66 किताबों में एक लफ्ज भी ना बढ़ाएं ना निकालें। 되면 이 세상에 이렇게 살 수 있는 우리가 돼야 되겠습니다. 예. हत्ता कि अगर हम अब तक दुनियावी तर्ज से जिंदगी गुजार रहे थे, 들려서 살았다 할지라도 चूंकि हमने खुदा के कलाम को जाना और सीखा है, 알게 된다라고 한다면 오늘부터 तो क्या हमें इसी लम्हे से आइंदा को इन पर अमल नहीं करना चाहिए? 여러분과 제가 돼야 되겠죠. आयत 13 복스러운 소망 और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यसुम मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें, 그가 우리를 대신하여 जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। 하나님의 ये कहती है कि खुदा अपनी सब तालीमात और हदायत देते हैं ताकि पाक करके अपनी खास मिल्कियत के लिए एक उम्मत बनाए। आप सब, 여러분도 저도 क्या हम सब खुदा के लोग नहीं हैं? हम खुदा की उम्मत हैं और हम खुदा के फर्जंद भी हैं। 우리 하나님의 खुदा हमें ये तालीम देते हैं ताकि हम खुदा की खास मिल्कियत बन सकें। तब हमें दुनिया के लोगों से अपने आप को मुख्तलिफ बनाना चाहिए 우리 자녀들 जो इन तालीमात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। शायद कुछ कहें, 그럼 क्या महज नेक चलन और इखलाकी तौर पर खुदा पर एतकाद ना रखते हुए जिंदगी गुजारना ठीक नहीं है? ये सच नहीं है। 하나님께서 खुदा की उम्मत के तौर पर जो सच्चाई में है, खुदा हमें सिखा रहे हैं कि अपनी जिंदगियां कैसे गुजारें। 라고 하는 그 삶의 어떤 그 방도를 일깨워 주신 것입니다. 이스라엘 इसराइलियों को मुल्क के किनारे में दाखिल होने से पहले बियाबान से गुजरना था। उन्होंने बियाबान में 40 सालों का एक लंबा अरसा गुजारा था। 40년이라는 긴 시간을 이제 보내게 되는데요. उस वक्त के दौरान 하나님께서 खुदा ने उन्हें अपने अहकाम बख्शे, उन्हें सबत के दिन की अहमियत और उनके कलाम की फरमाबरदारी में कैसे जिंदगी गुजारनी है सिखाया। खुदा ने ये किया 가나안 땅에 ताकि इसराइलियों के लिए हर काम में भला हो जब वो मुल्क के किनारे में दाखिल हों। आजकल इस जमीन पर रहते हुए 살아가면서 शायद हम सोचें, मेरे गिर्द लोग सर्द रूह, बदकार और बदइखलाक हैं और वो खुद गर्ज हैं और सिर्फ अपनी परवाह करते हैं। क्या मुझे भी उनकी तरह पेश आना चाहिए? 그 사람 दुनिया के लोग दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, 우리는 लेकिन हमारा ताल्लुक आसमान से है। इसीलिए हमें खुदा की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। 이렇게 해서 खुदा ने हमें कहा है कि हम दुनिया के नूर और नमक बने। नूर का काम तारीकी को पीछे धकेलना है और नमक चीजें खराब करने के अमल को रोकने के लिए बतौर तहफ्फुज़ पजीर इस्तेमाल होता है। खुदा सयून के फर्जंदों के वसीले इस बिगड़ी हुई दुनिया को पाक साफ करना चाहते हैं। 통해서 하나님께서는 이루시기를 원하십니다. 예, 그래서 इसीलिए हम मसीहियों को यकीनन ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए। 녹아 있어야 된다는 것. 여러분도 저도 मुझे उम्मीद है कि हम इस वक्त इससे अपने दिलों पर कंधा कर सकते हैं। 에베소 हालांकि हमने कई बार खुदा के अहकाम और आइन सीखे हैं, 우리 मगर मेहरबानी से एक मसीही की जिंदगी के बारे में 그동안
कलमात इफ्सियों बाब 4 से पढ़ें। 또 율법도 많이 배우고 하나님 हमें निजात बख्शने की गर्ज से ऐसे कई असबाक हैं जो खुदा ने हमें बख्शे हैं, लेकिन किताब मुकद्दस के इन असबाक के बावजूद कुछ कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए अपनी दिन ब दिन जिंदगी गुजारने के लिए किताब मुकद्दस हमारे लिए सिर्फ एक रहनुमा है। क्या वाकई इसका हमारी निजात से कुछ लेना देना है? ये अल्फाज नामाकूल हैं। 이 성경 किताब मुकद्दस की 66 किताबों में लिखी हर बात का ताल्लुक हमारी निजात से है। इस किताब की नबूवत की बातें क्या ये किताब मुकद्दस की तमाम 66 किताबों का अहाता नहीं करती हैं? 그렇지 않습니까? 이 अगर 시대에 कोई उनमें कुछ बढ़ाए तो फिर क्या होता है? 어떻게 해요? हमें हरगिज अपनी आरा को शामिल नहीं करना चाहिए, 안 됩니다. 하나님 ये सोचते हुए कि हमें किस किस्म की तालीमात खुदा ने अपने मंसूबे में बनी आदम की निजात के लिए बख्शी हैं। आए हम अपनी बेहतरीन कोशिश करके उनकी तालीमात की फरमाबरदारी करें और अमल में लाने की हर मुमकिन कोशिश करें। आए इफ्सियों बाब 4 पर चलें। 4장 14 बाब 4 आयत 17। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। 너희는 행하지 말라. क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमें गैर कौमों की तरह नहीं चलना चाहिए? 말라는 뜻 아니겠습니까? आयत 18। 저희 총명 क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। इसका मतलब है ऐसे लोग हैं जो खुदा से जुदा दुनिया में बेमकसद मादी जिंदगियां गुजारते हुए भटक रहे हैं। 사람들이다 말이죠. 저희가 उन्होंने सुन होकर 자 되어 शहवत परस्ती को इख्तियार किया 모든 더 ताकि हर तरह के गंदे काम 행한다고 했습니다. किसके साथ? 오직 हिर्स से करें, 욕심으로 यानी वो लालच से चलते हैं। 심खा는 लालच खुद गर्जी है, हिर्स से करें। आयत 20 ये कहती है मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। वो तालीमात जो हमने पाई हैं और वो जो दुनिया के लोगों ने पाई हैं, उनमें एक बड़ा फर्क है। वो जो हमें तालीम देते हैं खुदा हैं। तब क्या हमारा रवैया उन लोगों के लायक नहीं होना चाहिए जो खुदा से तालीम याफ्ता हुए हैं? मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई। आयत 21। बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है। हमें अपना अगला चाल चलन उतारना चाहिए, हमारी पुरानी इंसानियत, हमारा पुराना किरदार, हमारे दुनियावी ख्यालात वगैरह। आयत 23। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रासबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। सिर्फ तब हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आए आयत 25 से जारी रखें। बस क्या छोड़ना चाहिए? झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़ हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाहिश में तुमसे दूर की जाएं। हमें क्या करना चाहिए? ये सब दूर की जाएं। आयत 32। और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। आप सब आसमानी शहरियों के तौर पर हमें ऐसे चलना चाहिए। खुदा की मर्जी की पैरवी करना मुश्किल होगा अगर हम एक दूसरे से झगड़ें या कहर और नफरत से भरा दिल रखें। चाहे वो लोग किताब मुकद्दस पढ़ें, खुदा की मर्जी उनके दिलों में पहुंच नहीं सकती। वो ना तो मुतासिर होते ना इल्हाम पा सकते हैं।
एक बार फिर 자신을 한번 आए हम अपना जायजा लें। 우리가 이렇게 살아야 될 एक वाजिया वजह है कि क्यों हमें अपनी जिंदगियां इस तरह गुजारनी चाहिए। दीनदारी की जिंदगी गुजारने के लिए हमारे पास एक अच्छी वजह है, इसलिए हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम वैसे रह सकते हैं जैसे दूसरे लोग रहते हैं। एक बार फिर मैं आप सब से कहना चाहता हूँ कि दुनिया के मौजूदा हालात में बह ना जाएं, बल्कि हमेशा खुदा की तालीमात को थामे रखें। 부탁드리겠습니다. खुदा ने खानदान के बारे में कई कीमती तालीमात बख्शी हैं। 굉장히 참 ताहम 중요한 가르침을 वक्तन फ़ौक्तन मैंने कुछ लोग देखे जो आसानी से अपने ज़ाती राय या ज़ाती एहसासात की बिना पर इस किस्म की तालीमात को नज़रअंदाज कर देते हैं। 왕왕 눈에 보입니다. इफ्सियों बाब 5 आयत 22 कहती है, ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। 하라고 했습니다. ये मेरा ज़ाती ख्याल या राय नहीं है, ये खुदा का कलाम है। 아닙니다. क्या आप नहीं सोचते कि खुदा जो इब्तिदा से अंजाम की खबर रखते हैं कि इन कलमात को फरमाने की एक वजह है? कुछ भी खुदा की मर्जी के बगैर पैदा नहीं किया गया, ना आसमान ना जमीन, ना ही तमाम खल्क में कोई और चीज। जरूर कोई वजह थी कि खुदा ने हमें ये तालीम बख्शी। हतमी तौर पर ये एक अहम तालीम है। आए आयत 22 से जारी रखें। ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है 머리가 됨이 जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। 몸의 구주시니라. लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ये कहती है कि शोहरों को अपनी बीवियों से मोहब्बत करनी और उन्हें अजीज रखना है, जैसे कि मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी और उसके लिए अपने आप को दे दिया। हमें ऐसा करना चाहिए। हालांकि ये तमाम तालीमात किताब मुकद्दस में मिलती हैं, 근데도 लेकिन हम अक्सर इनका मुताला करके उन्हें अपने दिलों पर नक्श नहीं करते। 이런 내용 इसलिए हम दुनिया के लोगों के मयार की पैरवी करने की तरफ माइल होते हैं। 그런 어떤 기준에 같이 편성할 때가 많습니다. 우리는 क्या हमें खुदा की तमाम तालीमात की पैरवी हत्ता कि अपने खानदानों और मुआशरे से जुड़े रहकर नहीं करनी चाहिए? 살수 있는 여러분과 저의 모습이 되어야 되지 않겠습니까? 예. किताब मुकद्दस कहती है कि बीवियों को हर बात में अपने शोहरों के ताबे होना चाहिए और ये कि शोहरों को अपनी बीवियों से मोहब्बत रखनी चाहिए, जैसे कि मसीह ने सलीब पर मसलूब होकर कलीसिया से मोहब्बत रखी। 아끼고 서로 연합하고 사랑하라고 했습니다. आए देखें आयत 26, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए 자기 앞에 और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शोहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। 교회를 इसलिए कि हम क्या हैं? 우리는 그 हम उसके बदन के उज़ हैं। 지체 이민이라. इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। 이밀이 크도다. ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से क्या करे, वो डरती रहे। शोहर अपनी जवानी में अपने खानदान की कफालत के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए रिटायर होने की वजह से उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब वो रिटायर हो जाएं, तो हमें उनसे कैसे पेश आना चाहिए? हमें कहना चाहिए, आपने हमारे खानदान की कफालत और परवरिश के लिए बहुत कुर्बानी दी है। अब से आए मिलकर खुदा पर एतकाद रखें और अपनी बकिया जिंदगी सुकून से गुजारें। माजी में जब वो सारा दिन काम करने के बाद घर लौटता था तो तमाम खानदानी अराकीन ये कहते हुए उसका खैर मकदम करते थे कि आपकी बहुत ज्यादा सख्त मेहनत के लिए आपका शुक्रिया। 내가 그만 하셨습니다. लेकिन वो अब उम्र सीधा और रिटायर हैं, इसलिए उनसे हकारत से पेश ना आए। 여기는 शोहरों और बीवियों को एक दूसरे से रिटायरमेंट से पहले और बाद में यकसा सलूक रखना चाहिए। 왜 이런 가르침 आए हम एक बार फिर गौर करें क्यों खुदा ने किताब मुकद्दस में हमें ये तालीम दी थी। 세상 사람들과 같이 살 것이 아니라 항상 우리 삶의 आए हम दुनिया के लोगों की मानिंद जिंदगी ना गुजारें, बल्कि इसकी बजाय अपनी जिंदगी का मयार खुदा के कलमात की बुनियाद पर बनाएं। अगर आप बाब 6 से जारी रखें,
ہم والدین اور بچوں کے درمیان تعلق کے حوالے سے خدا کی تعلیمات دیکھ سکتے ہیں۔ افسیوں باب 6 آیت 1، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ خدا میں فرمانبرداری سے مراد عام ایمان میں فرمانبرداری کی زندگی گزارنا ہے۔ آیت 2، اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر، عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ اے نوکرو، جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرمانبردار رہو جیسے مسیح کے، اور آدمی کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو۔ حتیٰ کہ جب آپ کام کریں، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کریں بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو، اور اس خدمت کو آدمیوں کو نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو۔ خدا نے ہمیں یہ تمام تعلیمات بخشی ہیں، اس کے باوجود ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا میں اگر آپ بے دلی سے کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں تو آپ خارج کر دیے جائیں گے۔ آپ سب، چاہے جہاں کہیں ہم رہیں یا کسی بھی قسم کے لوگ ہمارے گرد ہوں، ہمیں ہمیشہ خدا کے فرزندوں کی خوبیاں ظاہر کرنی چاہیے۔ نمک کو ہرگز اپنی نمکینی کھونی نہیں چاہیے۔ کیا نمک اپنا کردار تحفظ پذیر کے طور پر تب ادا نہیں کرتا جب اس کی نمکینی قائم رہتی ہے؟ اسی لیے خدا نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا کے نور اور نمک بنے، چاہے یہ روحانی دنیا کے لیے ہو یا جسمانی دنیا کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم سب خدا کے وہ فرزند بنیں گے جو دنیا کے نور اور نمک ہونے کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیں آیت 7 سے جاری رکھیں، اور اس خدمت کو آدمیوں کو نہیں بلکہ خداوند کی جان کر جی سے کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ جو کوئی جیسا اچھا کام کرے گا، خواہ غلام ہو خواہ آزاد، خداوند سے ویسا ہی پائے گا۔ اور اے مالکو، تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے، اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ آج کے دنوں میں غلام کا نظام نہیں ہے، اس لیے ہم اسے ایسے تعلق کے طور پر سمجھ سکتے ہیں جو اونچے یا ادنا رتبے والوں کے درمیان ہو۔ چاہے آپ ایسے تعلق میں ہوں، محض دکھاوے کے لیے کام نہ کریں بلکہ ایسے کام کریں جیسے آپ وہ کام کر رہے ہوں جو خدا نے آپ کو سونپا ہو۔ چاہے ہم کیسے ہی قسم کے مالکوں کے ساتھ دنیا میں کام کر رہے ہوں، ہمارے خدا ہمیں یعنی سیون کے فرزندوں کو سکھاتے ہیں کہ ہمیں جی سے کام کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں، کیا اپنے افسران کی فرمانبرداری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا میں آسمان میں داخل ہوں گا یا نہیں؟ کیا واقعی مجھے اپنے افسران کی فرمانبرداری کرنی ہے؟ اگر کوئی اس قسم کا سوال پوچھے تو یہاں یسوع جواب دیتے ہیں، متی کی انجیل باب 5 آیت 20، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں کیا نہیں ہوگے، ہرگز داخل نہ ہوگی۔ اس جملے میں ایک بڑا اصلاح کرنے والا ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہرگز ہے۔ یہ کہتی ہے اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ آپ سب، اگر ہم ان معاملات سے چشم پوشی یہ کہتے ہوئے کریں، کیا خدا ہمیں محض اخلاقی یا نیک چال چلن کی تعلیمات اچھے لوگ بنانے کے لیے نہیں دے رہے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ ہم اسے کریں یا نہ کریں؟ بالکل فرق پڑتا ہے۔ تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ یہ کلام نہ میری رائے ہے نہ میرا خیال، بلکہ یہ خدا کی براہ راست تعلیم ہے جو تمام بنی نوع انسان کو بخشی گئی ہے۔ اس لیے ہم سب کو جو آسمان کی جانب گامزن ہیں، ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے۔ آئیں ہم سب دنیا کے نور اور نمک بنیں اور زیادہ روحوں کی خدا کی باہوں میں رہنمائی کریں، اور ایسا کرنے سے آئیں ہم خدا کو تمام جلال لوٹائیں۔ اس سے میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔